गुड इवनिंग एवरीवन। निवेश के गुरुकुल सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरुचि है और मैं आज के इवेंट की होस्ट हूँ। इवेंट पर जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स अभी केवल इस सेशन को सुन सकते हैं और सेशन के दौरान आप अपने सवाल चैट के माध्यम से हमें टाइप करके भेज सकते हैं। सवाल पूछने के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए चैट के ऑप्शन को प्रेस करना है और अपना सवाल टाइप करके हमें भेजना है। सेशन के अंत में हम आप सभी के सवालों को एक एक करके आंसर करेंगे। ये इवेंट रिकॉर्डेड है और इस इवेंट की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर की जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट बिहेवियर के बारे में। ये एक ऐसा विषय है जो कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को के लिए बहुत जरूरी है। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए वी हैव इनवाइटेड टू स्पीकर्स फ्रॉम LIC म्यूचुअल फंड, मिस्टर सुप्रियो मलादेव, जोनल हेड नॉर्थ LIC म्यूचुअल फंड, एंड मिस्टर योगेश पाटिल, हेड ऑफ इक्विटी LIC म्यूचुअल फंड। तो अब मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगी कि आप इस सेशन को आगे लेके जाएं। ओवर टू यू। Thank you, Suruchi, and I believe I am audible, right? Yes, you're audible. Thank So, you. on behalf of LIC Mutual Fund, I would like to welcome you all for this, event in accordance with the subject that has been mentioned out here. And just to update you, myself, Supriyo Malladev, and I am, taking care of the North Zone for LIC Mutual Fund. Well, I'm new to North Zone. I've just taken charge 2 महीने हुआ है फिर मेरा. But yes, I am not new to LIC Mutual Fund. I used to take care of East for LIC Mutual Fund for the last 6 years. And if you talk about LIC Mutual Fund, obviously, we'll back to the subject definitely. But if you talk about LIC Mutual Fund, as you all know, LIC Mutual Fund is a subsidiary of Life Insurance Corporation of India, where LIC and LIC Housing Finance put together is having around close to 82% stake. 4% stake are there with Corporation Bank of India and 11% stake are there with General Insurance Corporation. And in terms of the overall asset that we are managing close to 20,000 crore of assets. Out of that, 5,000 crore in equity, close to, and rest are in debt. And we are here with us, Mr. Yogesh Patil, and Mr. Patil is the head of equity for LIC Mutual Fund. He's having more than 20 years of work experience in this particular domain, and currently taking care of the flagship scheme of LIC Mutual Fund, that is LICMF Large and Mid Cap Fund, simultaneously LICMF Balance Advantage Fund. And prior to join LIC Mutual Fund, Yogesh was there with one of the prominent, asset management company for more than 10 years. He used to take care of their, tax plan as well as this infrastructure fund. So that's it from my side for the time being, and I would like to invite Yogesh Patil to have a brief description about, or rather to introduce himself, and accordingly if we can start the discussion way forward. Yeah, over to you, Yogesh. Yeah, thank you, Supriyo, and thank you, Nivesh, for hosting this event and inviting me. I'm Yogesh Patil, head of equity LIC Mutual Fund. So most of the introduction is already given by Supriyo. So I have almost more than 20 years of experience in equity markets. So without wasting too much of time, we should directly move to subject. So today's subject is investor behavior and emotion. This subject is very, very important in equity because equity market is very, very different and dynamic. It is not completely driven by pure mathematics, pure knowledge. Because we try to, it looks finance is related to mathematics or accounts, but actually equity is very similar to entrepreneurs, those who want to invest in any other business, maybe in unlisted arm. So their psychology and efforts and calculations all are important, but not one thing. You need a combination of effort. And why investment behavior is important? Because it always gives a conviction what is right and what is wrong. In education or maybe in school, high school, we do have a same question papers, and we do have a same answers. So we already have a tendency to match the numbers, match the answers. But this equity is very open-ended and it keeps changing. And is most of the financial markets are relative in nature. Especially equity is very diversified. So it is not stick to one basics. It has 1,000 basics,
but same basics, how do you apply your mind, what is the angle you apply, and what is your conviction level. That's actually testing every time. So I'm just moving the next slide. So it is a behavioral bias. So bias to most of the investor I know, or more, or 80% investor is biased to trade frequently. They feel ki if I keep switching quickly, so I can make more money, right? And they end up with spending more money on brokerages, right? And unwilling to cut their and unwilling to cut the loose position. मतलब देखिए बायस ट्रेड जो होता है बेसिकली, अपन हर इन्वेस्टर ये ट्राई करता है कि जितना ज्यादा ट्रेड करेगा उतना ज्यादा कमाएगा। आज अगर 2% कमा लिया तो रोज ऐसे ही कमाएगा। और फिर जो भी लॉस मेकिंग पोजीशंस होती है उसपे कोई भी इन्वेस्टर पोजीशन अपना लॉस बुक नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कभी कभी ऊपर आएगा। जो ऊपर आ गया उसको तुरंत बेचता है, जो नीचे जाता है उसको कंटिन्यूस होल्ड करता है। तो आपका नेट पोजीशन हमेशा लॉस में ही रहता है। तो ये आपको बिहेवियर अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्या मैं अगर फ्रीक्वेंट अगर बार बार ट्रेडिंग कर रहा हूं तो प्रॉफिट में बुक कर रहा हूं तो लॉस भी बुक कर रहा हूं साथ में, तो ये मैच नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग करते रहिए, लेकिन आप जो भी करिए सिमिलरिटी रखिए। अगर आप लॉस में भी अगर 4 साल 5 साल वेट करते हैं तो प्रॉफिट में भी वेट करिए, क्योंकि पूरे पोर्टफोलियो में 25 से 30% ही स्टॉक आपको पैसा बना के देते हैं। जैसे कि पीटर लिंच ने कहा है कि उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि अच्छे स्टॉक्स को बेचना, खराब स्टॉक को बाय करना नहीं, अच्छे स्टॉक्स को बेचना उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। उन्होंने काफी ये चीज हाईलाइट की है और ये बहुत सही सोच है। आप कोई कभी भी देखिए पिछले 20 या 30 सालों में 10 या 20% ही शेयर ज्यादा रिटर्न देते हैं हमेशा, और 1 या 2 या 3 स्टॉक आउट ऑफ 10, मतलब जैसे कह सकते हैं कि 15-20% ही पोर्टफोलियो का जो स्टॉक होता है वो सबसे ज्यादा रिटर्न देता है, एंड वही उसको एवरेज के ऊपर लेके जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा है चेजिंग ट्रेड्स बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर और मे बी फ्रेंड सर्कल और मे बी ए ब्रोकर और मे बी सम ऑफ द प्रीमियर इन्वेस्टर्स। देखिए चेज ट्रेड मतलब आप जो बोल रहे हो मान रहे हैं, पर उनका बेसिस आपको पता नहीं, वो क्या लॉजिक यूज कर रहे हैं, क्या उस लॉजिक से उनको पता है, क्या उनको सही पता है, या जो लोग ये पोजीशन जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उनका कैलकुलेशन सही है। तो दूसरों पे बहुत ज्यादा भरोसा करना या ब्लाइंडली आंख बंद करके आंख मूंद करके उनको भरोसा करना ये सही नहीं है। ये इक्विटी मार्केट अच्छों को करेक्ट कर देता है इमीडिएटली, बहुत जल्दी। आपने देखा होगा इस मार्केट में 90 से 95% लोग जो है नुकसान ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बहुत छोटी मेंटेलिटी से या लिमिटेड बैंडविड्थ के साथ या फिर लिमिटेड इमोशंस के साथ प्ले करते हैं, और हमें उनका जो बेसिस जो है हिल जाता है। जैसे आपको किसी ने बोला कि ये स्टॉक बाय कर लीजिए, आपने बाय कर लिया, तो आप काफी सारे जो इंफॉर्मेशन है हो सकता है आपके दोस्त के पास है या नहीं है वो भी मालूम नहीं है, लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है कि उसने बाय करने को बोला है, तो आप उसका वेट करोगे, जब वो सेल बोलेगा तब बेचेंगे आप। लेकिन अगर उसने सेल करने को बोला ही नहीं है तो आप बेचोगे ही नहीं फिर आप। तो इसके लिए ये सारी चीजें जो है बहुत बेसिक होती है, और इसमें पैसा बनाना जो है ऑलमोस्ट नामुमकिन बराबर हो जाता है। अगर आपका लक सही है तो ठीक है, लेकिन एक बार आप सही आओगे तो आप उसी को कॉपी करोगे फिर से। हमेशा याद रखिए अच्छी आदतें से ही आदमी आगे बढ़ता है, चाहे इक्विटी मार्केट हो, चाहे कोई भी अपना दिनचर्या में कोई भी चीज हो, वो सब चीजें एक ही चीज फॉलो करने की और अपने आप में भरोसा रखिए तो ही होता है। और सेम चीज है एंकरिंग बायस, मतलब अपन एक चीज पे फोकस कर रहे थे। जैसे कि मैंने बताया कि जो पहली बार आपको सक्सेस मिली है या पहली बार प्रॉफिट हुआ है, अपन उसी को रिप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसी को रिपीट करते हैं। जैसे कि जुए में भी होता है, 3 पत्ती है जो भी, आप एक बार जीतते हैं तो आपको और कॉन्फिडेंस आता है और आप ज्यादा दाव लगाते हैं, तो आप एक चीज पे फिक्स हो जाते हैं। वो फिक्स मत रहिए। ये मार्केट रोज चेंज होता है और रोज आपको इवेलुएट करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोज ट्रेड करना है। आपको समझना है क्या ये जो खरीदा है सही है या गलत, ठीक है। कंफर्मेशन बायस, कई बार क्या होता है, अगर पूरा न्यूज़पेपर में या न्यूज चैनल पे एक स्टॉक बाय करने के लिए घूम रहा है और सभी लोग उसको बाय बोल रहे हैं, तो अपन को दिल में तसल्ली मिल जाती है कि हाँ ये सही बाय किया, सब लोग बोल रहे हैं मतलब ये सही है। बट ये ऐसा सही नहीं होता है। अगर आप देखेंगे कि काफी सारी चीजें जो मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं या फिर मैं किसी स्टॉक का स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहा हूँ, वो उस पर्टिकुलर बुल रन में मोमेंटम रहता है और उसके बाद फिर कभी नजर नहीं आता। तो आपको इन सब चीजों से केयरफुल रहना पड़ेगा। और जैसे कि बड़े बड़े इन्वेस्टर ने, वॉरेन बफेट ने, सबने कहा है कि इन्वेस्टर का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसकी खुद की आदतें और इमोशंस होती है, मार्केट से और स्टॉक से बहुत कम होती है।
क्योंकि आप किसी नॉलेज का एप्लीकेशन ज्यादा अच्छे से करेंगे वो अच्छी बात है, बजाय बहुत ज्यादा नॉलेज लेके उसमें कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन मत करिए, जो चीज करिए उसे समझ के करिए, चाहे छोटा बड़ा सिंपल कंपनी लीजिए या जो आपको अच्छे से समझ में बिजनेस है उन्हीं को इन्वेस्ट करिए, तो जिससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी और आपको समझ में आएगा कि मेरे को कब बेचना है, चाहे कितना भी ऊपर आने के बाद बेचना है या नीचे आने के बाद बेचना है, पर आपको पता चलेगा उससे। जैसे कि छोटे एक सबसे बड़ा एग्जांपल है जो दुनिया में मेरे ख्याल से ये सभी के लिए वैलिड है कि छोटे छोटे सेंटिमेंट्स या छोटे छोटे चीजों को देख के शॉर्ट टर्म में आपने इवेंट देखा कि यार ये मुझे जम नहीं रहा है या आपको फीलिंग खराब आ रही है और आपने फंडामेंटल को इग्नोर कर दिया, उसका लॉन्ग टर्म जो प्रोस्पेक्ट आपको समझ में नहीं आ पाए और जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी आपने नजरअंदाज कर दिया, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक रोनाल्ड वायले था जो बेसिकली एप्पल का एक को फाउंडर था, मतलब 3 लोगों ने मिलकर एप्पल बनाई थी, उसमें से तीसरा पार्टनर ये था। तो उसका उस टाइम उसने $400 इन्वेस्ट किए थे इसमें, सॉरी $400,000 इन्वेस्ट किए थे। एंड उसके बाद उस पर उसका कॉन्फिडेंस हिल गया और उसने सीधा 800 में उसका $800 में 1976 में आईफोन का 10% स्टॉक बेच दिया। अब आज उसका जो भाव है सेम स्टेक का $200 बिलियन है। आप सोचिए 800 कहां पर और 200 बिलियन डॉलर किधर। 800 में होने के लिए क्या था, रिस्क क्या है यहाँ पर कि 800 से 400 हो जाएगा या 800 से 200 बिलियन डॉलर ऊपर आ गया। रिस्क ये नहीं है कि नीचे गया, रिस्क ये है कि आपने अपॉर्चुनिटी मिस की, वो भी रिस्क है। अगर आपको लूज बॉल मिलती है, अगर आप छक्का नहीं मारते उस पर या रन नहीं बनाते, वो भी एक रिस्क है। इक्विटी मार्केट में 2 रिस्क होते हैं, एक नीचे जाने के लिए आपने अगर गलत इन्वेस्ट कर दिया और एक गलत तरीके से या जल्दी बेच दिया, वो भी बहुत बड़ा रिस्क होता है। ताकि एक अच्छा स्टॉक आपको 2-3 स्टॉक की गलतियों से बचा सकता है। देखिए यहाँ पे इमोशंस कैसे प्ले करते हैं, आप सिंपली देखिए, जब स्टार्टिंग में जब मार्केट ऊपर आता है इन्वेस्टर वेट करता है, यहाँ पे जैसी लेवल 1 पे वेट करता है, दूसरे पे थोड़ा वो होता है कि चलो मुझे लेना चाहिए, तीसरे में एक्साइटमेंट आता है, उसको लगता है खुशी होती है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है 4 नंबर पे देखिए, तो उस टाइम सबसे ज्यादा रिस्क कैरी करता है। उस सडनली जो उसका मोमेंटम है, जैसी मार्केट नीचे आता है वो डर में बदल जाता है और तुरंत बेच देता है और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर आता है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, जो पिछले 6 महीने या शॉर्ट टर्म जो मेमोरी रहती है उसी को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। और नॉर्मली लोगों को देखा है, आप ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि दिन में अपन 60 से 70,000 जो थॉट्स होते हैं, अपन सोचते हैं इतनी बार, लेकिन उसमें से आप देखेंगे कि 60 से 70% थॉट नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो अपन अगर कुछ नहीं मिलता है, अगर अपने पास फंडामेंटल नहीं है, अपने पास प्रॉफिट नंबर नहीं है कंपनी का, तो अपन हमेशा नेगेटिव सोच के उसमें परेशान होते रहते हैं और उससे तुरंत एग्जिट कर जाते हैं। इसके लिए क्या है, बैलेंस पोजीशन जो है, मेजोरिटी। अब देखिए कि नॉइस से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जो सही नॉइस है या नॉइस कहना गलत है या न्यूज सही है गलत है उस पर उसको हमेशा इग्नोर करना चाहिए, बट आपको हर चीज को परखना पड़ेगा और अपने ही वैल्यूएशन पैरामीटर पे आपको स्टिक रहना पड़ेगा, ना ही किसी के कहने पर। किसी के कहने में मार्केट अच्छा लग रहा है तो इन्वेस्ट कर दिए, वो भी गलत। तो आप पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि जैसी मार्केट ऊपर नीचे होगा, आपका अगर बेसिस अंडरस्टैंडिंग का किसी के रिकमेंडेशन पे है तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे आप। और इक्विटी मार्केट में उन्हीं का पैसा बनता है जो हमेशा इन्वेस्टेड रहते हैं। तो इससे कि आपको बैलेंस पोजीशन रखना पड़ेगा। जैसे कि डेट इक्विटी है, जहां भी आप एसेट क्लास है, बैलेंस रही है। जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना ही रिस्क लीजिए, और जरूरत से ज्यादा रिस्क लेंगे तो भी परेशानी है, जरूरत से कम लेंगे तो भी परेशानी है। इतना लीजिए कि आप आराम से चैन से सो सकते हैं या 5 साल तक उसको बिना देखे रह सकते हैं। जैसे कि आजकल बैलेंस एडवांटेज फंड निकले, जो एक क्लासिक कैटेगरी को आप वो करते हैं। बेसिकली एक इन्वेस्टर साइकोलॉजी को उन्होंने एड्रेस किया ये फंड्स ने, और ताकि इन्वेस्टर बहुत ज्यादा पैनिक ना हो। इसमें बेसिकली वोलेटिलिटी कम हो जाती है बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी फंड में। तो इसमें नॉर्मली क्या है, जो वोलेटिलिटी कम होती है, इससे आपको स्ट्रेस कम होता है, आपको टेंशन कम होती है, और आप एटलीस्ट इन्वेस्टेड रहते मार्केट में। तो आप एक वो रहेगा, या तो फिर आप खुद भी बैलेंसिंग इक्विटी और डेट से खुद भी कर सकते हैं। आप अपने पैरामीटर सेट करिए, इस टाइम पे आपको लग रहा है वैल्यूएशन ज्यादा है तो निकल जाइए, बजाय कि किसी के सुने हुए कहने पे काम करना है कि ये इसने बोला मार्केट अच्छा है इसलिए इन्वेस्टेड रहो, या फिर मार्केट नीचे आ रहा है दूसरों ने बोला मार्केट नीचे आएगा तो उस पर बेच। तो ये एक इंडिविजुअल कॉल होता है,
क्योंकि देखिए जब इन्वेस्ट करते हैं, जो काफी जो पैसे वाले बने, उन्होंने अपने ही अंडरस्टैंडिंग से या अपने ही इमोशंस पे, कन्विक्शन पे उन्होंने बड़ा वेल्थ क्रिएट किया। ये पिक्चर आप मेरे ख्याल से सभी जानते हैं, ये चतुर्लिंगम और दुबे जी है। उस पिक्चर में भी चतुर्लिंगम ने बिना सोचे समझे वर्ड्स रट्टा मार लिए थे, बिना समझे, और उसका आपने देखा उस पिक्चर में कैसा हर्ष हुआ था। चमत्कार के बदले बलात्कार, जैसे ही ऐसे ही आज भी ऐसे ही है। कोई भी जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो रिस्क को कोई मतलब नहीं रहता, सब भूल जाते हैं रिस्क क्या है। सिंपल ऐसे ही है, रिस्क मैनेजमेंट को समझाता है तो कहता है रिस्क नहीं चाहिए, मुझे स्टॉक चाहिए, मेरे को पैसा बनाना है। बट वो भूल जाता है कि जो स्टॉक बिना रिसर्च किए हुए स्टॉक बाय करना अपने आप में सबसे बड़ा रिस्क है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी चीज बिना सोचे समझे करेंगे उसका अंजाम भी आपको सोचना पड़ेगा। तो अभी रिस्क है, जैसे मैंने कहा रिस्क क्या है मार्केट में। रिस्क ये है जो आपको पता नहीं है कि ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी का फ्यूचर कैसे चेंज होता है। रिस्क ये है उस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कैसे चेंज होगी, आपको पता है उसके क्या क्या पैरामीटर है, क्या कॉस्ट फैक्टर है। कई बार जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट ऊपर बढ़ता है, कुछ बढ़ता है, तो आप उसमें कैसे रोल प्ले कर सकते हैं। देखिए ये बहुत मुश्किल है कि हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर स्टॉक का फ्यूचर निकाले, लेकिन आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होना ही चाहिए। और इमोशंस, जैसे कि अगर आपने कंपनी के फंडामेंटल इग्नोर किए तो आपके इमोशंस कंट्रोल में कभी नहीं आएंगे। आपको हमेशा ऐसे ही लगेगा कि अरे अभी क्या करूं, अभी क्या करूं, और उसमें हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो आप ही का इमोशन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन के बैठ जाएगा। और सही नॉलेज, मतलब लैक ऑफ रिलेवेंट नॉलेज, मतलब सही नॉलेज चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको बहुत अकाउंटिंग सुपर नॉर्मल नॉलेजेबल आदमी चाहिए या बहुत बड़ा कुछ मैथमेटिशियन चाहिए। इसके लिए ऐसा नहीं, आपको बेसिक कॉमन सेंस यूज करना आना चाहिए। कॉमन सेंस सबसे बड़ा सेंस होता है, और एप्लीकेशन ऑफ जो भी लिमिटेड नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है एनुअल रिपोर्ट पढ़ने का, वो सफिशिएंट है अगर आदमी सही से काम करेगा। और इक्विटी मार्केट को आप बड़े लंबे समय से देखने की कोशिश करिए, जो एक लॉन्ग टर्म व्यू से देखिए। पिछले 20 साल की हिस्ट्री देखेंगे इंडिया में, तो इंडिया में रफली 3 या 4 बार ही अभी तक नेगेटिव रिटर्न दिया, उसके अलावा मेजोरिटी टाइम पॉजिटिव रिटर्न दिया। और पॉजिटिव रिटर्न भी आप कंबाइन करेंगे तो डेट से कहीं गुना ज्यादा है, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन जो महंगाई है उसको भी कवर करना है। तो एक स्टॉक्स परसेंट देख के या एक स्टॉक पे कॉल लेके पूरे मार्केट पे व्यू लेना, या मार्केट पे व्यू लेके किसी स्टॉक पे कॉल लेना, ये दोनों ही गलत है। जब तक आप पूरा अच्छे से आंख खोल के लाइट चालू करके एलिफेंट को नहीं देखेंगे आप, तब तक आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि ये जानवर क्या है, ये क्या चीज है। क्योंकि तो अंधेरे में जो चीज पकड़ेंगे आपको भी समझ में आएगी। सूंड पकड़ा तो बोले सांप है, आपने देखा उसके पैर पकड़े तो आपको लगेगा ये कोई पेड़ है, पूंछ पकड़ी तो लगेगा ये रस्सी है, कोई ऊपर बैठेगा तो उसको लगेगा ये फैन चल रहा है मेरे सामने। बट ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ये जानवर अलग है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से बिना किसी पूरी चीजें जाने बिना अगर आप अंडरस्टैंडिंग के बिना काम करेंगे तो हमेशा रिस्क रहेगा, और आपका रिटर्न के जो पॉसिबिलिटीज है वो पूरे लक पे डिपेंड रहेगा। यहाँ भी देखिए बहुत लंबे टाइम से देखेंगे, देखिए इक्विटी मार्केट में आप बहुत शॉर्ट देखेंगे, चलो 15 से 25 बन गया पैसा, ठीक है, फिर 20 से यहाँ बन गया, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म से देखिए 2002 से लेकर यहाँ तक कितना एप्रिसिएशन हुआ, ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि रोज बैठ के आप ट्रेडिंग करेंगे, ये नीचे आया फिर ऊपर आया, क्योंकि जब आप ऊपर में हो सकता है यहाँ सही भेज देंगे, फिर नीचे आएगा तो भी सही जाएंगे, लेकिन जब नीचे से ऊपर आता है तो कैप्चर करना सबसे मुश्किल होता है। इसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म होराइजन रखना पड़ेगा हमेशा, और अच्छे स्टॉक में ही आप लॉन्ग टर्म होराइजन रख सकते हैं जो फंडामेंटली साउंड हो। देखिए इन्वेस्टमेंट जो पेशेंस जिसको बोलते हैं ना, धैर्य बहुत बड़ी चीज होती है इक्विटी मार्केट। एक बार जैसे मैंने पहले भी कहा है, नॉलेज थोड़ा कम रहेगा चलेगा, मेहनत कम करेगा चलेगा, लेकिन जो चीज आपके पास है वो धैर्य रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इसको मिस कर देंगे तो जो हाथ से वो भी निकल जाएगा, और आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे कि निवेश करना जो है बेसिकली एक पेड़ लगाने के जैसा है। आज आपने पेड़ लगाया तो उसका फल 3 साल 5 साल बाद है, आज क्या नहीं आता है। अगर कोई कहता है कि आज ही बीज लगाओ और आज ही फल मिलेगा तो झूठ बोल रहा है। ये स्टॉक मार्केट भी वैसा ही है। आपको हो सकता है कि आपको कोई झूठ मूठ बोल के एक दिन में फल दे देगा, आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, और हो सकता है कि वो रिपीट नहीं होती। अगर ये चीज रिपीट होती है तो शायद इस मार्केट में
80% से ज्यादा लोग लॉस नहीं करते। और इट रिक्वायर्स कन्विक्शन, मतलब आपने जो भी आपके स्टॉक है या भी आपकी पोजीशंस है या भी जो भी आपके आइडिया है उसमें आपको कन्विक्शन चाहिए। कन्विक्शन तभी आता है जब आप खुद काम करेंगे या सोच समझ के माइंड अप्लाई करके काम करेंगे, तभी कन्विक्शन आएगा, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी में आप हमेशा मिसबिहेव करेंगे। जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से काफी सारे न्यूज फ्लो आते हैं। उस न्यूज, कौन सा न्यूज फ्लो जरूरी है कौन सा नहीं है, अगर आपने गलत न्यूज पकड़ ली तो भी नुकसान में है, तो आपको सही गलत का फैसला करना आना चाहिए, ये भी एक बहुत जरूरी है। अगर आप सही गलत का फैसला नहीं कर पाएंगे तो आप धैर्य, जब पेशेंस जिसको बोलते हैं धैर्य, उसका आप पूरा बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे और जल्दबाजी करेंगे बेचने खरीदने में, जो कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो बहुत ही हानिकारक आदत है स्टॉक मार्केट के हिसाब से। जैसे कि धैर्य बोला है, तो धैर्य के साथ बहुत सारी चीजें रहती है। डिसिप्लिन, जैसे कि अपने आप को डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। हर्ड मेंटेलिटी, मतलब कि अब जैसे मैंने सुना है, जैसे मैंने देखा है 6 महीने में वैसा ही होगा आगे, वो गलत है। रिएक्टिंग ऑफ न्यूज, जैसे मैंने बोला कि कोई भी न्यूज है उसको तुरंत सबसे पहले मैं ट्रेड करूंगा या मैं सही जाऊंगा, वो भी गलत है। ये काफी सारी चीजें जो ऑलरेडी मार्केट में कैप्चर हो चुकी रहती है, और कई बार ऐसा होता है न्यूज फ्लो के बाद कुछ देर के बाद जब तक आप कुछ निकलने की कोशिश करेंगे तो मिस्टेक होती है। तो सारा पॉइंट यह है, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि हर चीज में यही है कि जब तक आप फंडामेंटल जानेंगे नहीं, अगर आपसे कोई कहेगा कि ये जानवर, जैसे अपने पास घोड़ा है, कोई बोलेगा ये बकरी है, अगर आपको अच्छे से देखा है कि ये जानवर घोड़ा ही है, तो आप जब कोई भी आपसे बोलेगा ये बकरी है या हाथी है, आप नहीं मानेंगे। सेम चीज स्टॉक में भी, कोई आपको आपने स्टॉक की अच्छे से स्टडी की है, जिसकी आपको पूरी जानकारी है, अगर कोई बोलेगा नहीं यार ये कंपनी अच्छी है या खराब है, ये खराब न्यूज फ्लो आएगी, तो आप उसको आप डिटेलिंग कर पाएंगे कि यह सही है कि गलत है। जैसे कि ओवर ऑप्टिमिज्म, जस्ट फ्यू डेटा पॉइंट, बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ आप पूरा कंक्लूजन ड्रॉ करना, वो भी गलत है। आपको थोड़ा और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए किसी चीज पे या किसी कंक्लूजन में पहुंचने के लिए। हर आदमी का कन्विक्शन लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अलग होता है, क्योंकि जो आदमी कम पैसे इन्वेस्ट करता है वो बहुत जल्दी कन्विंस हो जाता है, जो आदमी बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है उसको थोड़ा टाइम लगता है, वो पेशेंस रखता है समझने में। तो ये भी एक इसी के पार्ट है। मैं अलग अलग सेम चीज अलग अलग ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए। और जो चौथा है, इग्नोरिंग फंडामेंटल इज द बिगेस्ट रिस्क। सच्चाई को झुटलाना या उसको इग्नोर करना या नजरअंदाज करना, ये सबसे बड़ा रिस्क होता है इक्विटी मार्केट में, स्पेशली जो डिसिप्लिन के साथ। तो आपको फैक्ट भी लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी ने बोला आपको या टीवी में देखा ये चीज अच्छी है, आप उसकी बातों पे ध्यान दे रहे हैं और एक्चुअल में कंपनी शेल कंपनी है या इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है या फिर गवर्नेंस का है इसलिए स्टॉक रिग हो रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। वो हर चीज आपको खुद से देखनी पड़ेगी। या फिर जो जानकार सलाहकार है जिस पे आप भरोसा करते हो या उस पर ट्रस्ट है आपको सालों से, तो उस पे जो भी आपका एडवाइसर है उस पर बिलीव करिए आप। जैसे कि वॉरेन बफेट जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, उन्होंने हमेशा कहा है कि जिस स्टॉक को आप 10 मिनट से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते या फिर 10 साल होल्ड करना चाहते हैं तो 10 मिनट भी क्यों होल्ड कर रहे हैं आप। दोनों वाइस वर्सा है और दोनों ही कंडीशन में आपके रिजल्ट जो है सही नहीं आएंगे। धन्यवाद। आपकी तरफ से कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि योगेश जी ने कहा कि किसी भी पार्टनर के यदि इस विषय से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप प्लीज अपने क्वेश्चंस चैट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू आंसर। And since Yogesh is managing this, flagship scheme of LIC mutual fund, that is large and mid cap fund, simultaneously this balanced advantage fund. So if you can allow, just would like to ask one simple question to Yogesh. That is this particular fund I'm talking about, that is large and mid cap fund, one of the most consistent fund in this particular category. So what kind of stock selection process or what kind of fundamentals that we have? That's why we are maintaining this kind of performance for the last 5 years. Yogesh, if you can just let us know about that. Yes. Yeah, thank you, Sukhbir ji. जैसे कि
आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। आप फंडामेंटली और फिलोसफी और इन्वेस्टमेंट बिहेवियर तीनों की जरूरत पड़ती है, और हम लोगों ने इसमें कंसिस्टेंसी रखी है। हमारी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी जो कि मैनेजमेंट क्वालिटी, बिजनेसेस का इवेल्युएशन, आरओसी जैसे होते हैं ना, कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस कितना आगे चल सकता है, स्केलेबिलिटी कितना ज्यादा बिजनेस कर सकता है, ये हमारी फिलोसफी है। और ये सब जानने के बाद हम उस कंपनी पे भरोसा करते हैं और हमेशा इन्वेस्टेड रहते हैं, इसमें कि हम काफी सारे रिस्क फिल्टर आउट कर देते हैं। और जैसे कि अगर आप पूरी जानकारी रखते हैं, या एकदम पूरी जानकारी तो कहना गलत है, मिनिमम सफिशिएंट जानकारी अगर रखते हैं, तो आपका आपके इमोशनल बिहेवियर दोनों ही स्ट्रांग हो जाते हैं, और आप इमीडिएटली चर्निंग या फटाफट सेलिंग नहीं करते हैं। तो ये चीज हमने इसमें फॉलो की है, और आप देखेंगे कंसिस्टेंसी या टर्नओवर इसे मेंटेन किया हुआ है। जितने भी ग्रोइंग कंपनी है उनमें कैप्चर किया है, उनमें कॉन्फिडेंस कन्विक्शन के साथ रखने की कोशिश की है हमने, काफी जितना हो सकता है। और जहां पे बहुत ज्यादा रिस्क था नहीं किया है हमने इन्वेस्ट, जहां विजिबिलिटी ज्यादा थी वहां पे किया है, जहां पे ज्यादा गट फीलिंग की जरूरत पड़ रही थी वो हमने स्टॉक इग्नोर कर दी, चाहे भले ही कितने अच्छे लग रहे या अट्रैक्टिव लग रहे हो, हमने वहीं पर किया है जहां पे विजिबिलिटी थी, जहां पे जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े और हम इसको लंबे समय तक होल्ड कर सके, जो कि इन्वेस्टर के लिए अच्छा है हमेशा। क्योंकि अगर इन्वेस्टर के लिए पैसा बनाना है तो कोई भी इन्वेस्टर, जैसे मैं बिलीव करता हूँ कि बहुत ज्यादा रिस्क लेके या इन रिटर्न देना जो एक हमेशा सस्टेनेबल नहीं होता है, तो हम लोगों ने जहाँ पे रिस्क भी मॉडरेट लिया हुआ है, और बिजनेस विजिबिलिटी जहाँ पे ज्यादा है, जहाँ पे न्यू ट्रेंड्स दिख रहे हैं, वहां पे इन्वेस्ट करके हम लोगों ने रिटर्न बनाने की कोशिश की है काफी। और न्यू ट्रेंड्स जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि फॉर्मलाइजेशन एंड कंसोलिडेशन, जैसे कि आफ्टर जीएसटी और डीमोन के बाद जो नए जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है वो तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तो उनका मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है। दूसरा डिजिटलाइजेशन, जिसकी वजह से काफी सारे बिजनेस का प्रोडक्टिविटी तेजी से इंप्रूव हो रहा है, तो उसका भी इम्पैक्ट है। तीसरा है काफी सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं जिसका ओवरऑल इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ता है, जो इरिवर्सिबल होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, गवर्नमेंट ने काफी सारे रिफॉर्म्स किए हुए या चेंजेस किए हुए, उसका पूरा बेनिफिट अभी आना बाकी है और कुछ कुछ दिख रहा है। और पांचवा जो है बेसिकली मेक इन इंडिया एक्सपोर्ट है। इंडिया अभी चाइना वन पॉलिसी के रहते काफी सारा एक्सपोर्ट में ट्रैक्शन दिख रहा है, और हमारी फिलॉसफी और ये सब ट्रेंड्स हमने अपने फंड्स में कैप्चर किए हुए हैं, जो हमें लगता है कि बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी दे रहे हैं हमको, जिससे कि इन्वेस्टर एक स्टेबल रिटर्न बना सकता है यहाँ से। और हमेशा अगर वोलेटिलिटी भी आती है तो हमेशा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमेशा कॉन्फिडेंस बना रहता है। और यही सब चीजों के से चलते हमारा रिटर्न 5 साल के देखेंगे तो काफी अच्छे हैं। Yeah, thank you, Yogesh. And one last question from my side. Considering the current market situation, do you think that balance advantage fund can be a great, option for the investors? And if yes, then what kind of offering that we are having in terms of balance advantage fund? Because we have just launched this particular fund. So what kind of fund management process or what kind of process that you are thinking of applying for this particular fund? Yeah, Yogesh. जी देखिए, मैंने जैसे ड्यूरिंग द पीपीटी बताया था कि आपको बैलेंस अप्रोच रखनी पड़ेगी। जो इन्वेस्टर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं झेल सकते, उनके लिए बैलेंस एडवांटेज बेस्ट फंड है, क्योंकि कई बार इन्वेस्टर्स। And Yogesh, one question from Ashish. What makes LICMF BAF different from other existing BAF that is available in the market? Yeah. देखिए, दूसरों पे कमेंट मैं नहीं करूंगा, बट हमारा जो बैलेंस एडवांटेज फंड है वो फंडामेंटल ड्रिवन मैथमेटिकल मॉडल पे बेस्ड है, जो कि इंटरेस्ट रेट और कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो भी अपना इक्विटी एलोकेशन होता है। तो ये बेसिकली इंटरेस्ट रेट और एवरेज इंटरेस्ट रेट ऑफ 10 ईयर जीसेक एंड 1 ईयर जीसेक एंड रेपो रेट और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी के इस पे प्रॉफिट पे ये इसका एलोकेशन आता है, जो कि एक यूनिक है। हमने अभी तक किसी भी फंड का ऐसा नहीं देखा है, क्योंकि जहां तक मेरा अंदाजा है, जितना मैंने मीडिया में पढ़ा है सबके बारे में, सब लोग हिस्टोरिकल मेथड यूज करते हैं, जो कि वो एक डिफरेंट अप्रोच है। क्योंकि हमें एज ए हाउस लगता है कि पूरा इक्विटी मार्केट हमेशा डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंडामेंटल रीजन से ही चलता है, और आप काफी सारी तेजी में देखेंगे फंडामेंटल रीजन से ही चला है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा न्यूज फ्लो लिक्विडिटी से ऊपर नीचे होता है, पर लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल की वजह से चलता है। इसके लिए इक्विटी एलोकेशन भी फंडामेंटल से ही होना चाहिए,
और इक्विटी एलोकेशन मेरा पोर्टफोलियो भी फंडामेंटली अप्रोच से ही पोर्टफोलियो बिल्ड किया हम लोगों ने। एक और एग्जांपल देता हूँ, काफी लोग कहते हैं कि मार्केट अभी बहुत हाई वैल्यूएशन पे है। वैल्यूएशन कैसे डिसाइड करेंगे आप? आज का निफ्टी ब्लूमबर्ग का कंसेंसस लेते हैं 860 के आसपास, तो आपका निफ्टी कुछ 21 टाइम्स आता है, जो कि 2001 में निफ्टी जो था रफली कुछ 12 to 13 टाइम्स था। उस टाइम 10 ईयर जिसा एक 9 से 10 था, आज 10 ईयर जिसा एक 6.5। चाहे रियल एस्टेट हो चाहे कोई भी एसेट क्लास हो, आपको इंटरेस्ट रेट को नजर रखते हुए ही या फिर कंसीडर करते हुए ही आपको एसेट क्लास का वैल्यूएशन करना चाहिए। उसके हिसाब से 21 टाइम कोई बहुत ज्यादा नहीं है अगर आप इंटरेस्ट रेट 6 6.5 रखते हैं तो। लेकिन इंटरेस्ट रेट जैसे ही 10 कर देंगे आप, तो डेफिनेटली आपका 21 टाइम बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, और तब उस टाइम लॉजिकल जो पी वैल्यूएशन है वो आपका 15 से 17 के बीच में आ जाएगा, जो कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर या के लिए इतना इजीली फटाफट स्विच होना मुश्किल होता है। जो हम बहुत सारे पैरामीटर देख के हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं। ये यूनिकनेस ये है कि हम लोग डेली रिव्यू करते हैं, और अलोकेशन जो है हर 2% इंक्रीज पे या डिक्रीज पे चेंज होता है, जिससे कि हमेशा डायनेमिक रहता है। जो भी आपका मूवमेंट होता है इक्विटी मार्केट का तुरंत कैप्चर कर सकता है। ऐसा नहीं कि हम लोग मंथली बेसिस पे करेंगे या 15 दिन में करेंगे, क्योंकि मेजोरिटी जो फॉल होते हैं और अप जो होता है मार्केट, वो 15-20 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। मेजोरिटी आप कोई भी कभी भी मार्केट 10 से 12 दिन से शार्प नीचे नहीं रहता है, हमेशा नीचे होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने इसका डेली रिव्यू करते हैं, और चूंकि ये फंडामेंटल ड्रिवन है तो आपको डरने की भी जरूरत नहीं है, और एलोकेशन भी आपको परफेक्ट देता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, अगर कोई सोच रहा है कि अभी पैसा डेट में डाल देता हूं, जब मार्केट अट्रैक्टिव होगा तब डाल दूंगा, पर कभी उसको टाइम मिलता है इन्वेस्ट करने को नहीं मिलता है, वैसे भी डेट में डाल रहा है, तो इससे अच्छा कि जैसे सुप्रियो जी ने बोला कि बैलेंस एडवांटेज में डालेंगे, तो एटलीस्ट कोई भी फंड हाउस जैसे हम लोग है डायरेक्टली तुरंत इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कभी जब तक आप इन्वेस्ट करेंगे तब तक हो सकता है मार्केट और बढ़ जाए, या फिर इन्वेस्ट करना आपको टाइम ना मिले, ये भूल जाए। तो बैलेंस में क्या है, हम लोग सारा पैसा जो है एटलीस्ट उसी एलोकेशन से चेंज करते रहते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड जो कि वॉलेटिलिटी कम करने के लिए जाने जाते हैं, और इससे इन्वेस्टर हमेशा इन्वेस्टेड रहता है। और इसमें टैक्स भी, इक्विटी फंड है तो टैक्स का जो कैलकुलेशन है वो इक्विटी पे ही बेस पे होता है, तो टैक्स पे भी अट्रैक्टिव है, वॉलेटिलिटी भी कम है, और आपको इक्विटी का एक्सपोजर भी मिल रहा है। अगर आपको और चाहिए तो और एलोकेशन कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा पॉइंट जो शायद मैंने देखा है इंडिया में सब लोग मिस करते हैं, कि आपका जो रिटर्न होता है ना, वो आपका ओवरऑल एसेट एलोकेशन के बेस पे होता है। लोगों का वेल्थ 5 करोड़ रहेगा, लेकिन इक्विटी एलोकेशन 20 लाख 25 लाख रखते हैं, अगर उसमें पैसा डबल भी हो जाएगा तो ही कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे बेटर आप मॉडरेट रिस्क लेके किसी भी ज्यादा बैलेंस एडवांटेज में डालिए, या फिर मॉडरेट रिस्क लेके किसी अच्छे फंड में डालेंगे, एलोकेशन हाई करेंगे, तो ही उसका इंपैक्ट दिखेगा आपको। Thank you, Yogesh. That's it from my side. Over to you, ma'am. Yeah. थैंक यू। सो योगेश जी, अगर हम अभी फंड्स की बात करें जैसे कि, तो बैफ के साथ साथ आपका फ्लेक्सी कैप भी बहुत ज्यादा पॉपुलर कैटेगरी है इन्वेस्टर्स के बीच में। सो LIC के पास कोई इस कैटेगरी में फंड अवेलेबल है? इफ यस, तो उसकी कैसी परफॉर्मेंस रही है ओवर द इयर्स? देखिए, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है हमारे पास, और जैसे कि हमने बोला एज ए फंड हाउस हम लोग थोड़ा रिस्क कम लेते हैं, मॉडरेट रिस्क लेते हैं। हमने सब लार्ज एंड मिड कैप नहीं लिया हुआ है जी। तो फ्लेक्सी कैप जी अप्रोच फिलोसफी हमारी सेम है, बट हमारा मिड कैप का और स्मॉल कैप का एलोकेशन उसमें कम है थोड़ा, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि हम इससे चलते हुए न्यू ट्रेंड्स हमने कैप्चर किए, और एज ए हाउस हम लोगों ने काफी साइक्लिकल जो सेक्टर्स है उनको अवॉइड किए हुए हैं। साइक्लिकल सेक्टर मतलब मेटल, लार्ज इंफ्रा, और अपना मेटल कमोडिटी जैसे सीमेंट है, वो इसीलिए क्योंकि मेटल्स का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मैनेजमेंट के हाथ में कभी नहीं होती। अगर आप देखेंगे मेटल प्राइस ऊपर आते तो प्रॉफिट बनता है, मेटल प्राइस नीचे आते प्रॉफिट कम बनता है, तो उसमें मैनेजमेंट का वैल्यू एडिशन कुछ नहीं होता। तो वो सब स्टॉक हमने इग्नोर किए या बहुत ही लिमिटेड एलोकेशन किया हुआ है, ध्यान रखें। तो इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हमने ये सब अवॉइड किए हुए फ्लेक्सी कैप में, और जैसे जैसे क्लियरिटी आती है हम लोग उसमें एलोकेशन बढ़ाते आ रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ हमारा बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं है मिड कैप में, स्मॉल कैप में। इसके लिए अब रिटर्न्स भी मॉडरेट है उसमें, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी आती है, जो हमने जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग 3 से 5 साल का व्यू लेके इन्वेस्ट करते हैं, और जो सस्टेनेबल रहे, बजाय एक शॉर्ट टर्म में स्पाइक देके फिर ट्रेडिंग करके निकल जाए, वो अप्रोच हम नहीं रखते। तो इसके लिए वो सारे फीचर सारे फंड से एप्लीकेबल है। फ्लेक्सी कैप में और लार्ज एंड मिड कैप में 35% मिड कैप फिक्स है, तो उससे रेट रहता है, और फ्लेक्सी कैप में हमारा थोड़ा मिड कैप का एलोकेशन कम है रिलेटिवली बाकी फंड्स के मुकाबले।
तो परफॉर्मेंस इसकी स्टेबल रहेगी आगे आने वाले टाइम में। ओके, थैंक यू योगेश जी, दैट्स रियली ग्रेट। एंड अगला सवाल एक पार्टनर की तरफ से है, वो बोल रहे हैं कि आने वाले 20 इयर्स में आप इक्विटी मार्केट्स को कहाँ देखते हैं? देखिए, इक्विटी मार्केट अगले 20 सालों के लिए तो मुझे नहीं मालूम, पर मैं आपको 7 से 8 साल का टाइम देता हूँ, जो कि एक प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि 8 साल के ऊपर थोड़ा प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। देखिए, इंडिया में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हुए, जैसे कि मैंने बताया, हम लोग जो ट्रेंड देख रहे हैं, गवर्नमेंट ने काफी सारे रिफॉर्म्स किए हुए हैं। एक एग्री छोड़ दीजिए, उसके अलावा जीएसटी है, डिमॉन है, लेबर लॉज है, लैंड एक्विजिशन है, और अपना डिजिटल जो पिक हो गया कोविड के बाद, और चाइना प्लस वन पॉलिसी के चलते में, और दूसरा आईटी सेक्टर, जैसे मैंने बताया, डिजिटल का ग्लोबली भी काफी अच्छा बिजनेस चल रहा है, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में अच्छी खासी सैलरी हाइक हुई है। पीएलआई स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, उसमें आपका एम्प्लॉयमेंट अच्छा जनरेशन हो रहा है, और ये यंग पॉपुलेशन है। और जब यंग पॉपुलेशन, मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक ही कंट्री जहां यंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होता है, तो यंग पॉपुलेशन का फायदा क्या होता है किसी भी कंट्री को, क्योंकि वो कमाते ज्यादा है, खर्चा ज्यादा करते हैं, और सस्टेनेबल कंजम्पशन करता रहेगा। जो हो सकता है कि अपन लोगों ने नहीं किया कंजम्पशन, ये लोग आज वही सेम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन या उसी सेम का तुरंत 1-2 साल में कर देंगे। हो सकता है अपन लोग या आप लोग आईफोन को यूज नहीं करेगा 40 ईयर्स वाला, लेकिन नया जो यंग बंदा है, आज नौकरी मिलेगा आईटी में या कोई भी जॉब लगाओ, तुरंत आईफोन ले लेगा। तो इंडिया का स्ट्रक्चर, इंडिया हिस्टोरिकली कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी रही है। अगर आप देखेंगे पिछले 10 सालों में 36 से 28% इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट रहा है, और कंजम्पशन सीधा आपका 82, ऑलमोस्ट आपका 72% हो गया, 65 का। तो ये आगे भी कंजम्पशन ड्रिवन ही रहेगा, और इसमें जैसे कि इंडिया का जीडीपी मोर देन 50% सर्विस सेक्टर से आता है, तो यहाँ से भी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी रहेगी, और कंजम्पशन रहते हुए इकोनॉमी अच्छे से रन करेगी। तो इक्विटी मार्केट 5 से 8 साल के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, पर आपको शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी छोड़नी पड़ेगी। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, 2003 से लेकर 2008 तक मार्केट ऑलमोस्ट 4 या 5 गुना हुआ है, लेकिन उस टाइम मार्केट कम से कम 5 बार 15% नीचे गिरा है। अभी फिर भी निफ्टी आज इतना 20% नीचे नहीं भी गिरा है। तो आपको शॉर्ट टर्म इमोशन संभाल के रखनी पड़ेगी, ये नहीं काम आएगी। लॉन्ग टर्म अप्रोच रखिए। अगर 5 साल प्लस अप्रोच है तो बिल्कुल अच्छा मार्केट है, लेकिन आप मुझसे पूछेंगे, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए वो कहना मुश्किल है, बट 5 ईयर प्लस मार्केट, इंडिया मार्केट इज गुड टाइम टू इन्वेस्ट, एंड प्रॉब्ली वी आर, शायद ये अपॉर्चुनिटी आपको जो 1980s में या 1996-5 में मिली थी किसी सेक्टर में, वो आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है पैसा बनाने के लिए, एक वेल्थ क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जी योगेश जी। एंड योगेश जी, क्योंकि हम अभी यंग इन्वेस्टर्स के बारे में बात कर रहे थे और आज का टॉपिक भी कुछ इन्वेस्टर बिहेवियर से रिलेटेड है, सो ये एक ऐसी ऑडियंस होती है जहाँ पे नॉलेज बहुत ज्यादा अवेलेबल होती है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं, तो उनका कोई भी एक छोटा सा डिसीजन, फॉर एग्जांपल, या मार्केट से एक एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो बहुत क्विक रिडेम्पशंस यहाँ पे हमें म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिल सकते हैं, स्पेसिफिकली इन ऑडियंसेस। सो उसे किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, रिडेम्पशंस इन द मार्केट बेसिकली? देखिए, थोड़ा क्या है ना कि थोड़ा इक्विटी मार्केट में, जैसे मैंने बताया कि आपको बहुत शॉर्ट टर्म, अगर हिस्ट्री कोई भी रखिएगा तो इन्वेस्टर को हमेशा यही बताना चाहिए कि लॉन्ग टर्म रखिए। दूसरा, इक्विटी जो एक ही एसेट क्लास है जो आपको इन्फ्लेशन को बीट करके दिखा सकता है। राइट। अब बाकी कहीं भी पैसा डालेंगे, आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही सब ऑप्टिमल मिलेंगे या नेगेटिव मिलेंगे जी। क्योंकि आप टैक्स पे करेंगे, उस पर इन्फ्लेशन का भी इंपैक्ट लेंगे, तो कुछ नहीं है। पहले तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सट्टा करना है। इक्विटी होराइजन जो है 3 से 5 साल का ही रखना पड़ेगा। उसके बिना आप, जैसे आप कोई भी घर बनाते हैं या खाना बनाते हैं, एक मिनिमम प्रोसेस के बाद ही आप उस चीज का, डिश का या घर का एंजॉयमेंट कर सकते हैं। आप अचानक ही बोलेंगे नहीं नहीं ये ऐसा नहीं करना, अचानक ही बोलेंगे अभी टेस्ट करना है, अभी खाना है, तो नहीं हो सकता। राइट। इक्विटी, देखिए, इक्विटी रिटर्न ज्यादा देता है, पर इक्विटी को प्ले करने के तरीके भी अलग होते हैं। देखिए, इक्विटी जैसे न्यूक्लियर पावर या आग होती है, देखिए आग से नुकसान बहुत होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आग हम यूज नहीं करते। आग आप कंट्रोल में यूज करिए तो हमेशा फायदेमंद रहती है। वैसे इक्विटी मार्केट आप थोड़े लंबे होराइजन देखेंगे ना, तो ही आपको इन्वेस्ट करेंगे। और ठीक है, डेफिनेटली हर आदमी का फाइनेंशियल पोजीशन अलग होता है, वो उसका मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अगर पैसे की जरूरत नहीं है और स्टॉक अच्छे हैं या फंड अच्छा है या आपका एडवाइजर अच्छा एडवाइस कर रहा है, तो इमीडिएटली निकलने की कोई जरूरत नहीं है, उसको आप एक्चुअली एवरेज आउट कर सकते हैं। जी।
तो योगेश जी, सवालों में इतना ही। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी टीम का आज के सेशन का हिस्सा बनने के लिए और अपना कीमती समय हम सभी को देने के लिए। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. थैंक यू योगेश जी एंड थैंक यू Thank you. सुप्रियो जी। Thank you. Thank you, ma'am. Yeah. थैंक यू। सो मैं सभी पार्टनर्स को बताना चाहूंगी कि आज का सेशन यही समाप्त होता है। इस सेशन की रिकॉर्डिंग हम सब आप सभी के साथ जल्द ही शेयर करेंगे। सेशन का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. थैंक यू।